Good evening, friends. Welcome back to our YouTube channel Team Super Cluster. This is Sachin Sukla in front of you. Today I am going to teach you modern physics. In modern physics that I am teaching you the semiconductors. Already you have already watched in my previous lecture 3 and 4, 2, 3 and 4 where I have teach about that how the current flows in semiconductor, what is the mobility, what is the temperature coefficient. We have already learned all these things in the previous lecture. Now in today's lecture we will understand how the conductivity works in semiconductor, who is the responsible for this conduction in the semiconductors. Okay, so heading is our that conductivity of semiconductors. Conductivity of semiconductor. Conductivity of semiconductor. Conductivity of semiconductor. Okay friends, let us see how this conductivity occurs in semiconductors. We know that the semiconductor is bipolar. Why this is bipolar? Because there are two types of charge carrier. One is your hole and another is your free electrons. We can say that the current in semiconductor constituted by two types of charge carrier. One is your hole and another is free electrons. While matter is your unipolar because there is only one type of charge carrier, that is your free electrons, which constitute the current in metals. Okay, now understand that the conductivity of semiconductor. Okay, we know that there are two types of charge carrier. One is your holes and second one is free electrons. Free electron. So the current constituted by holes I am giving the name of is that Is, and current constituted by the free electrons I am giving the name of In. Okay, this is your H, this is your N. Okay, that's just let us see that I am making on diagram here. Suppose this is semiconductor. This is semiconductor and we have connected this semiconductor with a voltage source V. With a voltage source V. We know that the current will flow from positive terminal to the negative terminal. So we can make here the I notation like that here. So we will see that here in semiconductor the current is made by the two types of carrier. So where will be the movement of the charge carriers? What will be the direction of the hole movement and what will be the direction of the free electrons movements? So we can found it that we already have studied in our 10th standard that the current flow to the opposite of the free electrons, mean that if the current is flowing from positive terminal to the negative terminal, so free electrons movement will be here from negative terminal to the positive terminal. Okay, I am making it like that here. So now where will be the moment of the hole? What will be the direction of the whole currents या whole charge carriers? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि होल चार्ज कैरियर का डायरेक्शन किधर पे होगा. तो जैसे ही हम इस सेमीकंडक्टर में एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, एज वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट हैपेंस दैट द इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग and start moving, as well as the holes also start drifting, but both the direction is opposite. Mean the movement of holes, direction of movement of holes and direction of movement of free electron will be opposite to each other. Means that if the free electron is moving in this direction, and I'm sure that so we can say that the direction of hole will be the opposite to the direction of the movement of the free electron. So here I am representing the hole with the yellow color. So this is the movement of hole, and we know that the movement of the electrons will be to the opposite of this hole. So we are making it by the white color. आप यहाँ पे देख रहे हो कि होल का मूवमेंट इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये है. तो मेटल्स में करंट जो बनता है केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, जबकि सेमीकंडक्टर में होल और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से बनता है. तो यदि मुझे जानना हो तो टोटल करंट क्या होगा, तो वी कैन राइट इट लाइक दैट. तो टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर विल बी द इक्वल टू द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इलेक्ट्रॉन प्लस करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द होल कैरियर्स, I plus Is. Now the question is that what will be the direction of the total currents?
So from this diagram we can say that the direction of the current, conventional current, will be in the direction of the hole, will be in the direction of movement of hole. Here even that you can see that here that the free electron is moving opposite while the hole is moving in this direction. So current will be in the direction of hole currents. तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होल की तरफ जिधर मूव करेगा उधर के डायरेक्शन में होगा, जबकि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट होगा. सो ये हमें एक नोटेशन मिला. इसकी वजह से अब हम डिराइव करेंगे कि हाउ कंडक्टिविटी टेक प्लेस इन सेमीकंडक्टर्स. ओके, ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट. वी नो दैट व्हेन वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स टू द सेमीकंडक्टर हुज लेंथ इज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, so drift velocity will be directly proportional to the electric field. So here is the proportionality, directly proportional है. जो यहाँ पे directly proportional है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? VD is equal to the mu E. What is mu E here? Mu is your mobility. Even that it is a constant, we can say it is that constant. Here mu is mobility. So drift velocity is directly proportional to the electric field. VD is equal to mu E. And now what will be the formula of the current? We know that the current is equal to number of charge carrier multiplied by the magnitude of the charge carrier A cross section of area into VD, drift velocity. This is the formula of the current, we already know. Okay, now the current constituted by electrons will be I, that is equal to the N E. Here is the charge carrier, here is, sorry, I'm writing it again, it's something wrong here. Okay, here will be the Ne. What is the Ne here? The charge carrier of electrons. Electron का charge carrier है and E is the magnitude of charge carrier, A is the cross section of area of, and VD drift velocity of electron. So we can written like that VE. This is the current constituted by the free electrons. I am giving the equation first. Now what will the current constituted by the hole? This equation will be the similar for the whole currents. So IH is equal to, here will be the charge carrier of hole, number of charge carrier hole, H mean that hole idhar pe, E magnitude of the charge carrier, and A area of cross section. Here V was the drift velocity of electron. So in the case of hole there will be the drift velocity of hole. So we are getting that the two equation. One is the current constituted by the electrons, another is the current constituted by the holes. What will be the total current? Total current IT is equal to the sum of these two current, So we can write it here like that: N E A VE plus N H E A, H subscript में H A VH. Okay, this is equation. Now we will see here what are the commons. We will find that here A and E are the common. So we can take the common from here, but we are taking the only common here, E. And A drift velocity NH A VH. Okay. Now what is the formula of the current density? We know the current density G is equal to I by A. This is the formula of the current density. So if you will divide the area, if you will divide the both equation by the area, what we will get? Let us see that. हम यहाँ पे देखते हैं कि एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. यदि हम टोटल करंट्स को A से डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी द IT डिवाइडेड बाय A. दिस विल बी इक्वल टू द, हियर वी आर टेकिंग द A कॉमन, EA, any number of charge carrier of electron, drift velocity plus number of charge carrier of holes, and it will the drift velocity of holes. Okay, and we are dividing this A. So so what will happen here, that AA will be the cancel here, so we can say like that the current density is equal to the E NE VE plus NH VH.
Okay, we can say like that. Now here we have a drift velocity VE and VH. Now we want to change this equation in the terms of the conductivity, so we can write this equation like that. J is equal to E NE VE plus NH VH, and we know that VE is a drift velocity which is directly proportional to the E, or we can say that VE is equal to mu E. We already know that the drift velocity VD is equal to mu E. We have known this, here. So the current density J is equal to, we can write like that, the magnitude of the charge carrier E, NE, mobility of electrons, because this term is denoted by the electron. ये terms जो है हम number of charge carrier of electrons की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे mu, mobility of the electrons, electric fields multiplied by the electric field, plus NH. VH को हम लिख सकते हैं आपका mu, mobility of the hole, and this will be the multiplied by the electric fields. Okay, what is the common here? You will find that here E is the common. Are you getting me that? E is common. So we can say like that, the conductivity is equal to, if you will take the E is out of this equation, so we will get that E NE mu E plus NH mu H, and E is common here. Now we know the formula of the conductivity. Conductivity formula is NIE E. Sorry, we can write here, just misspelled here. What is the formula of the conductivity? Conductive formula is Ni, then multiplied by the magnitude of the charge carrier. Magnitude here, someone write like that, if the Q is also the magnitude of charge carrier, and if you written like that, it is also means that the magnitude of the charge carrier. कुछ books में E लेते हैं, कुछ books में आपके Q लेते हैं. Don't worry for that. Okay. Now it is multiplied by the NIQ. अब mobility से भी इसमें यदि यहाँ पे mobility दिया रहे तो it means that ये हमारा किसका term equation होता है? Conductivity का होता है. हम इस conductivity को यहाँ देखते हैं, क्या हम तोड़ सकते हैं किसी term को? यहाँ पे हमें mobility मिल रहा है, number of charge carrier of electron भी मिल रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरियर मिल रहा है. इट मींस दैट हम ये कह सकते हैं, वापस अगर इस ई को हम मान लेते हैं कि अंदर मल्टीप्लाइड है दोनों में, तो हम जे को इस टर्म में लिख सकते हैं, द करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द टोटल करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी बाय द इलेक्ट्रॉन्स. Why the conductivity by electron? Suppose that this is multiplied by here, यहाँ भी इसका multiplied हुआ और यहाँ भी multiplied किया है, and formula is that NIE. NIE is मतलब number of charge of carrier, and E is magnitude of charge, and mu is here mobility. Okay, so हम यहाँ पे लिख सकते हैं conductivity by electron plus conductivity by the hole. Okay, I think that you have got it, and the electric field is outside. तो ये टर्म हमारा किस में टूट चुका है? आपकी कंडक्टिविटी में टूट चुका है. ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है. अब यहाँ से हमें टोटल अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो मुझे यहाँ से एक वंडरफुल रिलेशनशिप मिला. यह हमारे किस टर्म में है? आपके करंट डेंसिटी के टर्म में है. करंट डेंसिटी के टर्म में है. तो यदि मैं टोटल कंडक्टिविटी की बात करूं, तो टोटल कंडक्टिविटी होगा कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टिविटी बाय द होल्स. ये हम लिख सकते हैं. तो मैं इसे अगले क्वेश्चन में अगर लेना चाहूं तो इस तरह कह सकता हूं, टोटल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी बाय होल. आई थिंक दैट you have got my points. Okay, now this has we got the equations, ठीक है, for total conductivity. And now if the question will come in exam, if it is the equation of the conductivity, if someone will ask you that what is the resistivity of the semiconductor, we already know that the resistivity is the reciprocal of the conductivity. So we can write like that, the resistivity is equal to 1 of reciprocal of the conductivity. So if the total resistivity will ask by the equation, so we can say that we can write it like that, 1 by sigma conductivity and sigma by hole. This is the
दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द रेसिस्टिविटी, टोटल रेसिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। यदि ये पूछता है तो हम यहां से इस इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं। नाउ वी नोट दैट द सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड अनदर इज योर एक्सटेंटिक सेमीकंडक्टर। इफ द इक्वेशन विल बी आस्क्ड फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मीन दैट इफ question will ask like that, what will be the conductivity for intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor। so यहाँ पे मैंने लिख दिया conductivity for intrinsic semiconductor। intrinsic semiconductor के लिए हमारी conductivity का फार्मूला क्या होगा, सिमिलर सेम थिंग दैट जो मैंने डिराइव किया है। conductivity होता है आपका Ni, number of charge carrier, magnitude of charge carrier which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb Ni, and then after that the mobility. But we know that there are two types of mobility in intrinsic semiconductor. One is your hole mobility and another is your free electrons mobility. So mu can be written like that, Ni E mu and mu P or mu H. Someone is right that if कोई इसे म्यू1 म्यू पी भी किसी इक्वेशन बुक में मिलता है, म्यू1 प्लस म्यू पी, यहाँ पे पी लिखा हुआ, या फिर किसी इक्वेशन में इस तरह भी मिलता है NIE म्यू ई एंड म्यू एच। आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी बुक में ये दिया रहता है, किसी बुक में दिया रहता है। तो ये हमारा है किसका, कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यदि आपका यहाँ रेसिस्टिविटी पूछता है सो इट विल बी द रेसिप्रोकल, आप वहां से निकाल लोगे। अब अगर पूछता है व्हाट विल द कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सॉरी पी टाइप नॉट, व्हाट विल द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। इन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, देयर आर टू टाइप्स of semiconductor, one is your p type semiconductor and another is your n type semiconductor। ये मैं जानता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पे हम कंडक्टिविटी बात करते हैं हम एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं कंडक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, conductivity of extrinsic semiconductor। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट इज योर पी टाइप होता है, पी टाइप के लिए देखते हैं हम। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, पी टाइप में भी दो टाइप्स के होते हैं आपको पता है, बट पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होती है वो किस टाइप की होती है, क्योंकि पी टाइप में आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसा कि इसका नाम ही है पी। व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज हियर होल। होल मीन्स दैट एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, होल इज मीन दैट एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो जहां पे जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। और यू कैन से दैट जब हम ट्राईवैलेंट मीन्स दैट जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 सेल, जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है वो ट्राईवैलेंट हम इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं, तो इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जब हम कंडक्टिविटी निकालेंगे मेनली, तो हम यहाँ कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर, यहाँ पे क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर आपका होल होता है। तो मैं कह सकता हूँ NH, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ होल कैरियर्स विल बी बहुत ग्रेटर होता है किससे, इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। या फिर मैं ये यहां से ये भी कह सकता हूं कि NH जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, एक्सेप्टर Na हियर मतलब एक्सेप्टर यूनिट, डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर क्या होता है, एक्सेप्टर, डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर जो हमारी एक्सेप्टर होता है। क्योंकि होल क्या होता है, पी टाइप मतलब यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका होता है, होल होता है। और होल क्या करता है, लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए इसे कहा जाता है एक्सेप्टर डेंसिटी, ठीक है। तो यह Na के इक्वल गत होता है, NH इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द Na। तो हम यहाँ से कंडक्टिविटी का सीधा फार्मूला लगाते हैं। कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है हमारा, NH है, फिर मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरियर, E is your magnitude of charge carrier. Now multiplied by the mobility. What is the mobility here? Mobility is holes mobility, whole mobility. Now someone can write it like that. NH को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, number of hole carriers is equal to the acceptor empty, क्योंकि हमारे acceptor के द्वारा भी होता है। तो इसे हम ये लिख सकते हैं Na E म्यू एच, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। चाहे हम इस इक्वेशन को ये बोले
या ये कहें या फिर ये कहें हम, बोथ आर द राइट्स, ठीक है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के बराबर होता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर यूनिट्स के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरह यदि यह पूछ लेता है आपका कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या होगा, अगर यहाँ पे एन टाइप का पूछे तो एन टाइप में हमें पता है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट फेज में ले रहा हूँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे पहले आप देखिए किसकी डोपिंग होती है, एन टाइप में पेंटावैलेंट होती है। किसकी डोपिंग होती है? पेंटावैलेंट की होती है। पेंटावैलेंट डोपिंग मतलब, पेंटावैलेंट मतलब जिसके की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे पेंटावैलेंट की डोपिंग तो होती है एन टाइप में। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है यहाँ पे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा यहाँ पे क्या है? एन ई है। आई थिंक दैट येलो कलर दिख रहा होगा या नहीं, चलिए मैं ठीक है चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एन ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज कैरियर ज्यादा होती है, किसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है? एन ए इज टू मच ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होता है? नंबर ऑफ होल कैरियर से, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा? अब ये पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट मतलब आपका जो डोनेट करता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो हम ये प्रकार से डोनर इम्प्योरिटी इसमें लगाते हैं। तो हम डेंसिटी ऑफ डोनर एटम की बात करेंगे। क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ डोनर एटम की। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स के बराबर भी होता है, एनडी के बराबर होता है। अब कंडक्टिविटी की यहाँ से हम फार्मूला लिखते हैं। कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है? एनी है। दिस सॉरी दिस विल बी इक्वल टू द, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ पे हमारा क्या है? क्या है यहाँ पे? एनी है। हम इसे पुट कर देते हैं। दिस इज मल्टीप्लाइड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरियर, वी आर राइटिंग हियर ई। नाउ अब यहाँ पे हमारी मोबिलिटी से मल्टीप्लाई होता है, तो मोबिलिटी हमारा यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो म्यू सब्सक्रिप्ट ई हम इसे लिखेंगे, या फिर इसी को हमारा कोई इसे इस तरह लिख सकता है, एक कोई इस तरह लिखेगा, एनी इज इक्वल टू द एन डी है, तो एन डी ई म्यू। एक इक्वेशन ये भी है। तो चाहे हम ये यूज करते हैं, कहीं कहीं यूज करेंगे, या फिर हम ये यूज करते हैं, बोथ द इक्वेशन आर राइट। अगर यहाँ से रेसिस्टिविटी पूछा जाएगा, सिंपली सी रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1 बाई कंडक्टिविटी हो जाएगा। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? साइमन पर मीटर होता है, साइमन पर मीटर होता है, ठीक है। और रेसिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, वो हम आपको पता ही है, ठीक है, ओम मीटर, इसका साइमन पर मीटर होता है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम मेनली उन्हीं की बात करते हैं, उन न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए मैं उस क्वेश्चंस को देख लेता हूं जो यहां पे न्यूमेरिकल्स हैं। फाइल एम्बोडेड, ये मेरी सॉरी ये फाइल यहां पे होगा, आई थिंक दैट द फाइल इन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे होना चाहिए, यस यहीं पे है, सेट 1 करके होगा, एंड आई एम चेकिंग इट दैट सेट 1 थिंग यही होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, इस पे हम सॉल्व करते हैं इसको कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर में। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? द रेसिस्टिविटी ऑफ एन टाइप जर्मेनियम इज 0.01 ओम मीटर एट रूम टेम्परेचर, फाइंड द डोनर कॉन्सेंट्रेशन if the mobility of electron is 0.39 meter volt per second. You know how you will solve this equation, how you will solve this question. Before going to attempting such type of question, first of all try to what is the given data, write down that what is the given data, then after that what the question is asking you write it here. तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं सबसे पहले given data क्या है। resistivity of n टाइम, मैं इसे लगता है आप पढ़ चुके होंगे, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक। इट इज स्मार्ट बोर्ड, सो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी चलाने में, अभी मैं भी न्यू हूँ इस स्मार्ट बोर्ड के यूज के लिए, ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलिए, कैसे भी है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जा रहा है, नॉट द प्रॉब्लम्स, ठीक, डन, शिफ्ट हो गया। अब व्हाट इज गिवन डाटा, हम गिवन देखते हैं क्या क्या गिवन है। चलो लेट अस सी व्हाट इज द गिवन। Given data is that the resistivity of n type germanium is कैसा सेमीकंडक्टर है? n टाइप का है, ध्यान देखिएगा। इट मीन्स दैट n टाइप कहने का मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। n टाइप जर्मेनियस इज 0.01 ओम, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेसिस्टिविटी लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी इक्वल टू 0.01 ओम मीटर।
सेकेंड क्या गिवन है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एट रूम टेम्परेचर फाइंड द डोनर कॉन्सेंट्रेशन। अब डोनर होगा ही क्योंकि एन टाइप मटेरियल है ये, तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो मतलब यह इसमें कैसा जो डेंसिटी ज्यादा होगी वो किसका होगा, डोनर एटम होगा, क्योंकि इसमें इंप्योरिटी हम पेंटावैलेंट से करते हैं, पेंटावैलेंट्स में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होता है, तो श्योरली सी बात क्या होगा, डोनर कॉन्सेंट्रेशन ही होगा यहाँ पे। तो वही ये पूछ भी रहा है, फाइंड द डोनर कॉन्सेंट्रेशन, एनडी हियर मतलब डोनर कॉन्सेंट्रेशन। ओके ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.39 मीटर वोल्ट्स पर सेकेंड, मोबिलिटी गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.39 यस यही दिया है 0.3 मीटर स्क्वायर वोल्ट्स पर सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन को सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है रेसिस्टिविटी दिया है एंड द कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है 1 बाई रेसिस्टिविटी, दैट इज इक्वल टू 1.01, that this is your points and this is equal to the 100। ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 100 सीमेन पर मीटर कंडक्टिविटी मिल गया। ओके, ये हमें यहाँ से मिल गया। अब फिर हम सीधा फार्मूला पुट कर देते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ फार्मूला, व्हाट इज द कंडक्टिविटी फार्मूला, एस इक्वल टू, अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था तो डोनर कंसंट्रेशन है, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ ई, एनी होता है जो फार्मूला करते हैं, नंबर जो फार्मूला हमें पता है, अभी मैंने बात किया था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरियर इनटू द मल्टीप्लाइड बाय द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन म्यू ई। ओके, यहाँ पे एनी मतलब होगा एनडी, अभी मैंने बात किया था कि एनी को हम एनडी रख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, तो एनी की जगह हम एनडी रख देते हैं यहाँ पे, donor concentration, and the E value is given that 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb, and mu is given that what is mu, 0.39। so if you calculate from here and the conductivity's value is given that the 100। okay, from this equation we can write like the and is equal to 100 divided by 1.6 into 10 की power minus 19 into 0.39। इसे हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर 19 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से हमको मिलता है 1.6 इंटू 10 की पावर 21, ये मुझे मिलेगा 1.6 इंटू 10 की पावर 21 यहाँ से हमें मिलेगा। और ये हमारा है क्या, हम कंसंट्रेशन को किस में बताते हैं, मीटर क्यूब में बनाते हैं, तो ये हमारा मीटर क्यूब मिल गया हमको 1.6 इंटू 10 की पावर 21 पर मीटर क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, but it is not the, okay this is your second question। so now mobility of electron, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, नाइट की जगह एंड होगा, mobility of electrons and holes in a sample of intrinsic germanium at room temperature are 0.36 meter per second volt per second and 0.17 meter square volt per second respectively if the electrons and hole density are each equal to 2 into 10 की पावर 19 मीटर से कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे कह रहा है इंट्रिंसिक जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर क्या है, यहाँ से हमें मिल रहा है कि क्या है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इन प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स एंड दैट इज इक्वल टू द Ni, N इज इक्वल टू NH दैट इज इक्वल टू द Ni। हम यहाँ से गिवन डाटा की थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। मैं इसे छोटा करता हूँ, आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा दैट क्वेश्चन, और मैं इसे ले जाता हूँ, अब की बार तो सही से सेट कर गया मैंने, उतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट व्हाट आई, पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, व्हाट इज योर गिवन डाटा। सबसे पहले क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करने से पहले आपकी प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, मोर प्रैक्टिस करोगे इजीली टैकल करोगे ये सब क्वेश्चंस को, ठीक है। तो गिवन डाटा में आपको क्या दिया गया है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन सैंपल इंट्रिंसिक एट रूम टेम्परेचर आर 0.36 मीटर एंड 0.7 मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ म्यू इक्वल टू व्हाट इज गिवन डाटा दैट 0.36 मीटर स्क्वायर वोल्ट्स पर सेकेंड, ठीक है, वोल्ट्स पर सेकेंड। नाउ ये म्यू था, म्यू एच व्हाट इज गिवन दैट, मोबिलिटी ऑफ होल कितना गिवन है बेटा 0.17 मीटर स्क्वायर volts per second, that is your mobility of the hole। okay, now if the electrons and hole density are each equal to the, we already know that intrinsic semiconductor में
Ne is equal to the nh, that is equal to the ni. We already know that is the whole carrier is equal to the electrons carrier, that is equal to the ni. Okay, ठीक है, Ne nh equal to ni. What is that? This value has given is that 2.5 into 10 की power 19 per meter square. This has is given in the question, already given that. Calculate the conductivity. Simple conductivity पूछ रहा है. Okay, conductivity, we know that what is the formula of the conductivity. Conductivity formula is simply that for intrinsic semiconductor, number of charge carriers Ni is multiplied by the magnitude of charge carrier and it is multiplied by the mobility. And in intrinsic semiconductor there are two types of the mobility. One is your hole and another is your free electrons mobility. So we can retain this like that, mu n plus mu h. Okay, here Ni's value is already given, that what is 2.5 into 10 की power 90s, and E is magnitude of charge carrier. Also we can write it that 1.6 into 10 की power minus 19, and mu n mu p, what is the value of the mu n is equal to 0.36 plus 0.17. हम इसे सॉल्व करते हैं. दिस इज 10 की पावर माइनस 19 एंड 10 की पावर 19 कैंसिल, एंड 25 2.5 था ना, ये कितना गिवन था, Ni इज योर 2.5 है ये, ठीक है. 2 point is multiplied by 1.6 and after that we will get that this equations 16 8 0 8 16 ये आ जाएगा हमारा 2123 2.127 per meter. 2.12 Simon per meter. 2.12 Simon per meter. I think that you can solve it. This is very easy question. Don't feel any problem that the question comes in examination from this area. That when you have a good concept of this, then I am sure that you can solve all the problems. Don't worry for that. We know. हम चलते हैं next question की तरफ. इसे आप पढ़िएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. If the ratio of the concentration of electrons and holes in a semiconductor is 7/5 and the ratio of current is 7/4, then the ratio of their drift velocity. Very good question. First of all मुझे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. If the ratio of the concentration of the electrons and holes in a semiconductor is 7/4, हमें what is the given data? Given data में आप देखोगे कि मुझे मिला है रेशियो मिला है. किसका रेशियो मिला है? आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का. दूसरा क्या दिया है? करंट का रेशियो गिवन है. पूछ क्या रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है. अभी मैंने जो डिराइव किया था, अगर वहां से देखोगे तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन ये वहीं से. तो ठीक है, हम इसको कॉर्नर में ले चलते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि कैसे होगा. ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम्स? हाँ यस, ये छोटा हो गया, एटलीस्ट मैं सक्सेस हो गया अपने एम में. क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा मुझे केयर करना पड़ रहा है इसको सेट करने में. ठीक, ये हुआ. अब हम देखते हैं गिवन डाटा में क्या क्या है. अब चलिए हम देखते हैं व्हाट इज द गिवन डाटा. गिवन में हमें क्या गया है? गिवन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल. क्या दिया है? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल. मीन दैट Ni और NH का रेशियो. Ni रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and NH is your number of charge carrier of hole. What is it is given? That 7/5. Okay, we have written it that. Now what is in second? Ratio of current is 7/4. Ratio of current is 7/4. Mean that I by IH is equal to 7/4 गिवन है. व्हाट इज क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? इन क्वेश्चन ही इज आस्किंग दैट द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड VH इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल. ओके, दिस इज आस्किंग द क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ this question can be solved by easily putting the equations values of equations of current. I की हम देख लेते हैं. यहाँ इसे बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो I इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? NEAVD. ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स multiplied by the magnitude of the charge carrier E, area of cross section, and drift velocity multiplied by the drift velocity. And what will the drift velocity? VE. Very good. And in second equation IH is equal to the same
which will be the same equation for current due to the hole is equal to the number of charge carrier of holes multiplied by the magnitude of charge carrier, area of cross section and drift velocity of hole. This is your first equation, this is your second equation. Divide the equation 1 with equation 2. Divide the equation 1 with equation 2. You will get that I by IH is equal to, हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी ये टर्म्स ई कट जाएगा, ए कट जाएगा, बचेगा हमारा जो टर्म्स एन ई वी ई डिवाइडेड बाई एन एच वी एच. नाउ आई और आई एच का रेशियो ऑफ आई एंड आई एच हैज गिवन ऑलरेडी 7/4 and that is equal to the ratio of NE and NH is given that 7/5 and it is multiplied by the VE by and VH. यहाँ से हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 5 will be the go on here and 7 will be the in the denominator. तो already this will be the cancel and this will be the cancel. So we can say that from here VE by VH is equal to 5/4. So I think that, is there any option? Yes, D option is correct. The fourth option is given that the 5/4. This will be the correct answer. Okay, you will find that it's a very easy numericals. These numericals has been asked in previous exam, like in that your UP state engineering examination, even that some numericals has been asked in your previous year IEEE. Now धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करते करते हम जंप करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे मेंस एंड एडवांस लेवल तक का. पहले आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, अगली न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट? Now read the question is that here a germanium specimen is doped with aluminium. The concentration of acceptor atom is 10⁻21 atoms per meter cube. Given that the intrinsic concentration of electron hole pair is 10⁻19, the concentration of electrons in the specimen is. Very good, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसके 4 ऑप्शन दिए हैं. सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए इसके, फिर हम मूव करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे. इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे. वेरी गुड. अब देखिएगा इसमें गिवन डाटा क्या क्या है, हम इसे छोटा कर लेते हैं. आई थिंक दैट आप देख चुके होंगे क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कीजिएगा. ओके, जो टफ काम है वो यही है, इसको इस तरह लाना, धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएगा, फिर इसको वापस यहाँ ले जाना, यही टफ होता है. न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो बहुत ईजी होता है ना, आपको भी लगने लगेगा. ठीक है, given what is the given that a germanium specimen is doped with aluminum. The concentration of acceptor atom is, यहाँ पे दिया है concentration of acceptor atom, mean that the Na is given that 10⁻21 atoms per meter cube. okay, ये given है, don't worry. okay, फिर क्या कहता है, गिवन दैट द इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर इज 10⁻19 मीटर पर क्यूब. ये भी कहता है कि इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन जो Ni गिवन है वो 10⁻19 है पर मीटर क्यूब. ये भी गिवन है. वेरी गुड. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसिमेन. पूछ क्या रहा है, Ni पूछ रहा है. अगर यार हम एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में. फार्मूला ये कहता है, आप पढ़ोगे मास एक्शन लॉ, अगर पढ़ोगे नहीं जानते होगे, ये देखिएगा NeNH इक्वल टू Ni स्क्वायर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन multiplied with the number of charge carrier of hole is equal to the square of intrinsic concentration. ये मैं जानता हूँ, यहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. बट यहां पे Ni पूछ रहा है, NH गिवन नहीं है, Ni की वैल्यू तो ठीक है मुझे मिल चुका है. बट यहां देखोगे आप इस क्वेश्चन में एक्सेप्टर एटम दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स दिया हुआ है 10⁻21 एंड वी नो दैट ये कैसा है, डोप्ड विथ, डोप किससे हुआ है, एल्युमिनियम से डोपिंग हुई है. किससे हुई है, एल्युमिनियम से डोपिंग हुई है. और एल्युमिनियम एक प्रकार का ट्राईवैलेंट है. कैसा है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं. तो जब इससे डोपिंग हुई है तो डोपिंग होने के बाद जो सेमीकंडक्टर बना होगा वो कौन सा बना है,
पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ है, क्योंकि इसमें ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी होगी तो वो सेमीकंडक्टर क्या होगा, आपका पी टाइप होगा। ठीक है, तो पी टाइप में हमारा जो होल कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा होता है, ठीक है, बट होल कॉन्सेंट्रेशन को ही हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एक्सेप्टर एटम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम कितना गिवन है, 10 की पावर 21, तो हम NH की जगह n की पावर a को लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। बस प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो Ne और NH की वैल्यू कितना गिवन है, Na की वैल्यू गिवन है 10 की पावर 21 एंड दैट इज इक्वल टू द Ni वैल्यू इज 10 की पावर 19 और ये स्क्वायर में हो जाएगा 10 की पावर 91 स्क्वायर। यहाँ से आप Ne निकालना चाहोगे तो दैट विल कम द 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 21 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा एंड यू विल सॉल्व दैट। कितना होगा ये 17, 10 की पावर 17 N इज इक्वल टू 10 की पावर 17 पर मीटर क्यूब। यही है आपका यानी गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यू हैव गिवन 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, एंजॉय करते हैं, डोंट बी पैनिक एंड आई एम श्योर दैट इफ यू विल कंसिस्टेंट इन बाय द ऑल द लेक्चर, धीरे धीरे आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। डोंट वरी फॉर दैट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज टफेस्ट न्यूमेरिकल, अभी तो मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ। अब पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं क्या होगा। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सैंपल ऑफ इंट्रिंसिक। देखिए क्या कह रहा है, इंट्रिंसिक यहाँ से मिल गया, इंट्रिंसिक मतलब प्योर। पकड़िए क्वेश्चंस में क्या कहता है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर आर 0.36 एंड 0.17. The electrons and hole density each are equal to the 2.5 into 10 की पावर minus 19. The electrical conductivity of ये क्वेश्चन तो दूसरा ही क्वेश्चन है, अभी मैंने जो किया था ये रिपीट हो गया है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्वेश्चन इज रिपीटेड दैट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, मोबिलिटी ऑफ होल भी गिवन है, वही फार्मूला लगेगा, सिग्मा इक्वल टू कंडक्टिविटी इक्वल टू NiQ ब्रैकेट में μn प्लस μp। तो दोनों का मोबिलिटी गिवन ही है और ये तो होगा नहीं, क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, जो सेकंड क्वेश्चन था रिपीट हो गया, वो वही क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, ये वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़िए। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर इज 10 की पावर 18 मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड विद अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग हुई है, इट मीन्स दैट सेमीकंडक्टर हमारा कैसा होगा, एन टाइप का होगा। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है ना, एटम्स ऑफ नंबर डेंसिटी 10 की पावर 25। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीटर क्यूब इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ। ओह, क्वेश्चन कुछ सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर इज 10 की पावर 18। पहले जो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में जो था, मतलब इंट्रिंसिक के टाइम में वो कितना था, 10 की पावर 18। और जब इसमें हम पेंटावैलेंस से हम डोपिंग कर देते हैं, पेंटावैलेंस से डोपिंग कर देते हैं तो नंबर डेंसिटी 10 की पावर 24 हो जाता है। विथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ नंबर डेंसिटी 10 की पावर 24 हो जाता है। जो इम्प्योरिटी हम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसकी डोपिंग 10 की पावर 24 है। वेरी गुड। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। पूछता है कितना उसका इंक्रीज किया हुआ है। वेरी गुड, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुझे लगता है आप सॉल्व कर लोगे। यही तो टफ काम होता है और ये मैं कर लेता हूँ तो मुझे अपने आप में बहुत खुशी फील होती है। ये मैंने यहाँ पे ले जाके सेट कर दिया। ओके, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्या दिया, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ Nd इक्वल टू गिवन था, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये गिवन है। नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ये गिवन है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बड़ा मॉस्किटो आ गया है, वही ठीक है, लीव दैट। Nd इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है, ये 10 की पावर 18 गिवन है। फिर ये क्या कहता है, इट इज डोप्ड विथ पेंटावैलेंट द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये Ne गिवन है, 10 की पावर 18 नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन है। इट इज डोप्ड विथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ 10 की पावर 14। Nd होगा क्योंकि पेंटावैलेंट
जो डोनेट करता है डोनर इम्प्योरिटी है, तो एनडी गिवन है ये। एनडी कितना गिवन है 10 की पावर 24, वेरी गुड। फिर पूछ रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाई, कितना नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हुआ है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब टोटल नंबर ऑफ हम इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर होगा यहाँ पे वो हमारा बड़े यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर Ni प्लस Nd, दैट विल बी द, कान में मॉस्किटो घुस जा रहा है, N इक्वल टू Nd और ये है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 18 एंड 10 की पावर 24, वेरी गुड। अब हमें पता है 10 की पावर 24 जो है वो इन कंपेरिजन टू द इससे बड़ा है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, किसको, इन कंपैरिजन में इसको कंपैरिजन, क्योंकि इसको हम ऐड करते हैं ये इसका कोई इफेक्ट ही नहीं रह जाता है, तो हमें कितना मिलता है, ये 10 की पावर 24 मिल जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ, तो अभी जो न्यू कितना मिला हमें, न्यू कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है 10 की पावर 24 मिल रहा है, पहले कितना था 10 की पावर 18 था, हम डिवाइड कर देते हैं 10 की पावर 24 को 10 की पावर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो ये आता कितना है 10 की पावर 6, तो जो फैक्टर इंक्रीज होता है वो कितना इंक्रीज हुआ 10 की पावर 6 फैक्टर। क्या कोई ऑप्शन गिवन है, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, तो ऑप्शन सी होगा। समझ में आया, कुछ नहीं था, सिंपल सी बात था ये, पहले डेंसिटी इलेक्ट्रॉन दिया था 10 की पावर 18, इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद 10 की पावर 24 हो गया, तो टोटल हमारा हम देखते हैं 10 की पावर 18 एंड 10 की पावर 21, बट ये 10 की पावर 24 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द इससे, तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं 10 की पावर 24 को, ठीक है, और वहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं पुराने से, तो 10 की पावर 6 आ जाता है। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी। नाउ अब इससे मूव करते हैं, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज 10 की पावर 16, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंट्रिंसिक, पकड़ लीजिए, मिला क्या पॉइंट, इंट्रिंसिक मिल गया, मतलब प्योर मिला हुआ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इतना है 10 की पावर 16 व्हेन डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब ये डोपिंग किससे हो रही है, ट्राईवैलेंट से, ट्राईवैलेंट से डोपिंग करेंगे तो इंट्रिंसिक किसमें बदल जाएगा आपका, किसमें बदलेगा, पी टाइप में बदलेगा, क्योंकि ट्राईवैलेंट डोपिंग करने से पी टाइप मिलता है हमारा, और पेंटावैलेंट से हमारा एन टाइप मिलता है, ठीक है, ट्राईवैलेंट हुआ। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है टू द 10 की पावर 14 एट द सेम टेम्परेचर, द मेजॉरिटी कैरियर डेंसिटी इज, द मेजॉरिटी कैरियर डेंसिटी इज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर दैट ये सॉल्व हम लोग कर लेंगे। देखते हैं, 4 ऑप्शन है, आपको समय मिला हुआ है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करोगे यदि आप सीरियस स्टूडेंट्स होगे, और कोशिश करोगे इसकी आंसर लाने में, और इसका आंसर आपको आ भी जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। गिवन डाटा क्या है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर मीन दैट एनी मिला है हमें, एनी कितना दिया है 10 की पावर 16 गिवन है, वेरी गुड। व्हेन डोप्ड विथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज टू 10 की पावर 14 एट द सेम टेम्परेचर द मेजॉरिटी कैरियर। अब देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मेजॉरिटी कैरियर, क्या पूछ रहा है, मेजॉरिटी कैरियर। अब जरा ये बताओ, ट्राईवैलेंट से जब मैंने इसमें डोपिंग किया ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से, तो जब मैंने ट्राईवैलेंट से इम्प्योरिटी किया, डोपिंग किया, तो बना कैसा मेरा सेमीकंडक्टर, पी टाइप का, और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल होता है। तो एक्चुअली मेजॉरिटी कैरियर पूछने का मतलब इसका था नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH, ये पूछ रहा था ये, ठीक है। अब हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, गिवन था Ni गिवन था, NH पूछ रहा था, और जो डोपिंग करने के बाद डिक्रीज हुआ था वो कितना था, डेंसिटी डिक्रीज बाई 10 की पावर 14, सिंपल सा फार्मूला यही लगेगा, Ni NH इक्वल टू Ni स्क्वायर लगा दो आप, और ये आपका आ जाएगा। Ni हमारा क्या है 10 की पावर 16, NH पूछ रहा है, Ni नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक का कितना गिवन था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 10 की पावर 16 गिवन था, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने गिवन डाटा में नहीं लिखा था, Ni इक्वल टू 10 की पावर 16 गिवन है, ठीक है। कुछ गलती हुआ है क्या, नहीं, ठीक है, Ni गिवन है 10 की पावर 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
density of intrinsic semiconductor at room temperature is 10 की पावर 16 मीटर क्यूब. When doped with the trivalent impurity, density is decreased by 10 की पावर 14. पहले Ni given है, it is not the सॉरी क्वेश्चन में देखिएगा Ni गिवन है 10 की पावर 16 और डोपिंग करने के बाद हमारा जो मिलता है वो 10 की पावर 14 हमको मिलता है. ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई. अब इसे हम सॉल्व करते हैं, हमारा क्वेश्चन ये आ जाएगा. ठीक है, तो Ni की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, Ni रख देंगे 10 की पावर 14 का स्क्वायर. ठीक है, और ये हमारा क्या है आपका Ni की हमारी वैल्यू हो गई ना, Ni तो 10 की पावर 16 गिवन है ना, Ni 10 की पावर 16 गिवन है. और अब आपका Ni की वैल्यू 10 की पावर 14 है, तो NH यहाँ से हम निकाल लेंगे 10 की पावर 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 की पावर 14. इसे हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 14. इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 18. 14 ऊपर जाएगा तो 16 इंटू 10 की पावर 18 मीटर क्यूब आ गया. ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा. आई थिंक कुछ में कंफ्यूजन नहीं था एक्चुअली. पूरा था द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो Ni गिवन था 10 की पावर 16, फिर घट के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ था कितना हुआ था 10 की पावर 14. तो Ne हमारा जो हुआ था वो 10 की पावर 14 हो गया था. Ne हमारा 10 की पावर 14 हो गया था. Ne हमारा 10 की पावर 14 हो गया था. तो Ne NH इक्वल टू Ni स्क्वायर. तो Ne की जगह मैंने 10 की पावर 14 रख दिया. NH पूछ रहा था यहाँ से, Ni की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और सीधा इसे सॉल्व किया तो हमारा आ गया 10 की पावर 18 मीटर क्यूब. सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है. इन सेमीकंडक्टर 2/3 आता है. ये अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली रात के कितने बज रहे हैं टाइम देखते हैं, 12:17 हो रहा है. एंड यू कैन इमेजिन दैट आई एम अपलोडिंग द वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ 12:17 से. तो थोड़ा बहुत राउंडरी खाना खा चुका हूँ यार. ठीक, इसको हम ले जाते हैं क्वेश्चन को. आप पढ़ चुके होंगे क्वेश्चंस को. इन सेमीकंडक्टर 2/3 ऑफ द total current is carried by electron and remaining 1/3 by the holes. If at this temperature the drift velocity of electron is 3 times the holes, the ratio of number density of electron to the holes. Very important, बहुत सरल क्वेश्चन है. देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, गिवन डाटा में चलते हैं. आप कहोगे सर तो आप तो कहते हो हर ही क्वेश्चन को सरल होता है, क्या करें यार, पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया. Given in a semiconductor 2/3 of the total current is carried by electrons. ठीक है, and remaining 1/3 by holes. तो I let the total current is equal to I. total current मैं मान लेता हूँ. ठीक है, टोटल थोड़ा सा इस तरह लिख देता हूँ, मुझे लगता है लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा. सो टोटल करंट इज इक्वल टू I. मैंने ऐसा माना टोटल करंट I है, लेट नहीं लिखा हूँ, लेट भी लिख रहा हूँ. तो करंट ड्यू टू बाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2/3 ऑफ I. यही नहीं कह रहा है 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल करेंट्स. एंड करंट ड्यू टू द होल इक्वल टू 1/3 ऑफ I. 1/3 ऑफ I ये गिवन है. फिर क्या कह रहा है, इफ दिस टेम्परेचर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 3 टाइम्स दैट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन VE is equal to 3 times the drift velocity of VH. It is given in question. V is equal to drift velocity of electron, VH is drift velocity of holes. ये given है. ठीक है, the ratio फिर क्या पूछ रहा है, the ratio of number density of electron to that the hole. अब पूछ रहा है the ratio of number density of electron to that of holes. Mean that आपका जो रेशियो पूछ रहा हो वो Ne/NH का रेशियो पूछ रहा है. वेरी सिंपल, I और IH का फार्मूला लगाओ, डिवाइड कर दो इक्वेशन को, आपको बड़े आसान से आ जाएगा. ठीक है, I इक्वल टू फार्मूला मैं लिखता हूँ. I इक्वल टू क्या होता है, N E नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A multiplied by the drift velocity of electron, that is your VE. And IH is equal to
number of charge carrier of hole multiplied with magnitude of charge carrier of A and VH. This is your first equation, this is your second one. Divide the equation by equation 2. equation 1 को equation 2 से divide करोगे तो that is equal to IE by IH and this will divide करने पे ये दोनों टर्म तो कट ही जाएगा आपका, तो बढ़ेगा क्या NE VE and NH and VH. IE की वैल्यू 2/3 है और इसकी वैल्यू क्या है IH की 1/3. तो हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से मुझे ये मिलेगा, यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ से ये मुझे मिलेगा 2/3 तो ऐसे हम कैंसिल कर देता हूँ, ये मिला मुझे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/1 आई और IH की वैल्यू पुट किया तो, एंड फिर यहाँ पे V और VH की वैल्यू पढ़ता हूँ तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है 3VH. यदि मैं यहाँ फिट करता हूँ तो VH से VH कट जाएगा तो ये हमारा बनेगा क्या, हमें मिलेगा क्या यहाँ पे Ne3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू NH, ये मिलेगा. अब इसे हम यहाँ से यहाँ काट दें तो Ne/NH का जो रेशियो है वो हमें क्या मिलेगा, 3 इधर चला जाएगा 2/3 मिलेगा. क्या मिलेगा 2/3. Ne/NH का रेशियो क्या मिला 2/3. ठीक है, Ne/NH इक्वल टू 2/3. कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ तक आपको समझ में आ गया. बहुत सारे इजी क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया. अब ठीक है, नेक्स्ट सम सेशन में आपको स्टार्ट करेंगे, डायोड स्टार्ट करेंगे. उससे पहले जो ये आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं किसी स्टेट एग्जाम में, दैट आई विल कवर हियर. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.